آپ کو ایک مرتبہ پھر سے اپنے اس خوبصورت پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جو کہ ہے امپیکٹ ٹوڈے۔ جی ہاں، مارک اور وکٹوریا باؤلنگ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، جہاں پر ہم بائبل مقدس میں سے میریکل کی ایک اور نئی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انجیل مقدس جو کہ مرکز، متی، لوکا اور یوحنا، جی ہاں، یہ 4 اناجیل ہیں جو کہ خزانے ہیں، جی ہاں، معجزات کے خزانے ہیں، جہاں پر ہم ہر ایپیسوڈ میں ایک نئے معجزے کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ کو ایک سچی کہانی بتانا چاہوں گی، بلکہ یہ ایک گواہی ہے۔ ایسا ہے کہ ہماری ہی منسٹری میں شامل ایک خاتون کی بیٹی کافی دیر سے بہت زیادہ بیمار تھی، جی ہاں، کافی زیادہ بیمار تھی۔ اس کی عمر تقریباً 22 سے 23 سال کے قریب تھی، اور اس طرح کی ایج میں اسے بیماری نے آ کر دبوچ لیا تھا۔ اس کی ماں نے آ کر مجھ سے کہا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ ینگ ہے، بہت تکلیف میں ہے، کیونکہ اسے منہ کی بیماری ہے۔ اس کا منہ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب تھا، اور جیسے ہی وہ دوائی استعمال کرتی تھی تو اسے اس سے اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی، وہ بہت زیادہ پین میں تھی۔ تو کیا ہوا کہ میں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ وہ ہمارا چینل یعنی امپیکٹ ٹوڈے کو باقاعدگی سے دیکھے، کیونکہ بہت سارے ایسی معجزات اور ایسی گواہیاں ہم نے وصول کی ہیں جس کی بنا پر وہ لوگ دوسروں کی گواہیوں کو دیکھ کر وہاں سے شفا یاب ہوتے ہیں، اور یہ کہانیاں، یہ گواہیاں جو ہے وہ یوٹیوب پر بھی موجود ہیں۔ اور کیا ہوا کہ وہ لڑکی اور اس کی ماں نے باقاعدگی سے وہاں پر جو گواہیاں تھیں ان کو سننا شروع کیا، میریکل سنے، اور انہوں نے شفا پائی۔ جی دیکھیں، جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تم دعا مانگو گے اور اپنی شفا کے لیے خدا سے منت کرو گے تو وہ آپ کو ضرور شفا دے گا۔ خدا کی یہ جو باتیں ہیں، خداوند یسوع المسیح نے جو ہم سے فرمایا، وہ یقیناً ہمارے بدنوں کے لیے شفا کا کام کرتی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب بھی بیماری کی حالت میں ہوں، جب بھی کسی تکلیف یا دکھ کی حالت میں ہوں، جب بھی کسی پریشانی کی حالت میں ہوں، تو ہم خدا سے رجوع کریں، خداوند یسوع المسیح کے بیانات اور اس کی انجیل میں بیان کردہ باتوں پر غور کریں، کیونکہ انجیل میں ہمارے لیے شفا ہے۔ اگر ہم انجیل پر غور کرتے ہیں، اس کی باتوں پر غور کرتے ہیں، تو یقیناً وہ ہمیں شفا دیتا ہے۔ پاسٹر، جیسا کہ آپ نے ابھی اپنے کلام میں بیان کیا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک میڈیسن ہے، جی ہاں، ایک دوا ہے ہمارے تمام تر مرضوں کی شفا یابی کا۔ تو کیوں نہ ہم اس دوا کو دن میں 3 مرتبہ متواتر لیں۔ جی ہاں، ہم روزانہ کی بنیاد پر اس میڈیسن کو دن میں 3 دفعہ اگر لیتے ہیں تو ہم شفا یاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر طبی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، تو ہم اس کے لیے دوائی کھاتے ہیں، اور ڈاکٹر ہمیں اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ یہ میڈیسن آپ نے دن میں 3 مرتبہ کھانی ہے اور باقاعدگی سے کھانی ہے تاکہ آپ ٹھیک ہو سکیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں دعا کو بھی، مسیح یسوع کے معجزات کو، کلام مقدس کو دوائی کے طور پر لینا چاہیے، اور یہ دوائی جو ہے یقیناً ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور کرے گی۔ اس لیے ہمیں باقاعدگی سے دن میں 3 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر اس میڈیسن کو لینا چاہیے۔ دیکھیں، آج ہم اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا داہنا ہاتھ خراب تھا، اور بائبل میں مرقوم ہے۔ عبرانیوں کے خط میں ہم دیکھتے ہیں، لکھا گیا ہے کہ خدا کل، آج اور ابد تک یکساں ہے۔ جیسے وہ کل شفا دیتا تھا، وہ آج بھی اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ ہمیں ان معجزات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور ان پر غور کرنا چاہیے، اور خداوند سے اپنی شفا کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے،
क्योंकि बाइबल के मुताबिक वो कल, आज और अब तक यकसां है, और जैसे वो कल मौजज़ात करता था, आज भी करता है। जी हाँ पास्टर, और खुदावन यीशु ने हमसे कहा है कि हम उसकी औलाद हैं और वो हमारा बाप है और वो हमारी मदद करता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक अमीर आदमी जिसके पास पैसे ज़्यादा हों वो गरीब आदमी से बेहतर अपना इलाज करवा सकता है, लेकिन खुदा बाप कभी ऐसा नहीं करता, बल्कि उसने हमें एक लेवल पर रखा हुआ है। वो हम सब उसके लिए बराबर है। वो ये नहीं देखता कि अमीर है कोई, गरीब है, मर्द है, औरत है, या फिर हमारा रिलीजन फर्क है। जी, वो सब पर यकसा फसल करता है। जैसे कि अभी हमने बात की है कि खुदा कल, आज और अब तक यकसां है, और वो किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं करता। वो हमेशा जो है रंगो नस्ल को नहीं देखता, ज़ात को नहीं देखता, ये नहीं देखता कि किसका कहाँ से ताल्लुक़ है, बल्कि वो सब के लिए हमेशा यकसां रहता है और सबको शिफा देता है। मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत से पढ़ेंगे। और वो वहाँ से चलकर उनके इबादत खाने में गया, और देखो वहाँ एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाने के इरादे से ये पूछा कि क्या सब्बत के दिन शिफा देना रवा है। उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे पकड़कर ना निकाले। बस आदमी की कदर तो भेड़ से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए सब्बत के दिन नेकी करना रवा है। तब उसने उस आदमी से कहा कि अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वो दूसरे हाथ की माने दुरुस्त हो गया। इस पर फरीसियों ने बाहर जाकर उसके बरखिलाफ मशवरा किया कि उसे किस तरह हलाक करें। ज़बरदस्त। तो चलें अब अगली आयत यीशु पढ़ें। ये मालूम करके वहां से रवाना हुआ और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको अच्छा कर दिया। चलिए कलाम में से देखते हैं मरकस 3 बाब और उसकी पहली आयत से। और वो इबादत खाना में फिर दाखिल हुआ, और वहाँ एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सब्बत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्ज़ाम लगाएं। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्सा से नजर करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। और फिर इसी तरह हम कलाम में देखते हैं, आगे यूं मरकूम है, उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। फिर फरीसी फिलफौर बाहर जाकर हेरोदियों के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें। हाँ, ये कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा ने कैसे कैसे, जी हाँ, ऐसे ऐसे लोगों को शिफा दी। जी, हम पढ़ेंगे लूका उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत से। और यूं हुआ कि किसी और सब्बत को वो इबादत खाने में दाखिल होकर तालीम देने लगा, और वहाँ एक आदमी था जिसका दाहिना हाथ सूख गया था। और फकी और फरीसी उसकी ताक में थे कि आया सब्बत के दिन अच्छा करता है या नहीं, ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने का मौका पाएं। मगर उसको उनके ख्याल मालूम थे। बस उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा था कहा, उठ और बीच में खड़ा हो। वो उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि आया सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या हलाक करना। और उन सब पर नजर करके उससे कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। वो आपे से बाहर होकर एक दूसरे से कहने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। तो इस वाक़े में हम देखते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह सूखे हाथ वाले शख्स को शिफा देते हैं, तो इसमें दरअसल अहम बात यह है कि जब खुदावंद यीशु मसीह उन मजहबी उलमा के साथ गुफ्तगू करते हैं और उनकी बातों का जवाब देते हैं, और वो उलमा जो है वो इसी तलाश में थे कि किसी तरह वो खुदावंद यीशु मसीह को उसी की बातों में फंसाएं और उसके खिलाफ कोई ना कोई इल्ज़ाम गढ़ सकें। मगर यस्सु अल मसीह उनके इरादों और उनकी नीयतों से अच्छी तरह वाकिफ। इसलिए जब यस्सु अल मसीह ने उन्हें जवाब दिया कि क्या
सब्बत के दिन अच्छा काम करना चाहिए या फिर बुराई का काम करना चाहिए, तो उनके पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था और वो बिल्कुल चुप साधे उसके सामने खड़े थे। इसके बाद वो उलमा जो हैं वहाँ से निकलते हैं और बाहर जाकर फिर से मशवरे करना शुरू कर देते हैं कि किस तरह हम यस्सु अल मसीह पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। और यस्सु ने उस शख्स को जो है वहाँ पर शिफा दी। शायद कि वो किसी हादसे में ऐसा हो गया हो उसके साथ, या फिर कोई और मसला हो। जी हाँ, वो हम नहीं जानते कि वो पैदाइशी तौर पर इस तरह से था या फिर बाद में कोई हादसा उसके साथ पेश आया, लेकिन हम ये ज़रूर देखते हैं कि वो इंतहाई तकलीफ और कर्ब का शिकार था। वो इंतहाई मुश्किल में था और यस्सु ने उसे वहाँ पर शिफा दी। और जब यस्सु ने उसे शिफा दी तो फ़कीयों और फरीसियों ने इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की और यस्सु अल मसीह पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। लेकिन यस्सु अल मसीह उसकी तकलीफ़ से, उसके कर्ब से, उसकी अज़ियत से वाकिफ़ था और उसने इसी वजह से उसे सब्बत के दिन शिफा दी और फरीसियों के मुंह उस वक्त बंद हो गए। वो शख्स जिसके हाथ जो हैं वो माजूर था और वो उस हाथ से कोई काम नहीं कर सकता था, उसका हाथ जो है वो सिकुड़ा हुआ था, सूख गया था। यस्सु ने उसके हाथ को सही किया और वो बिल्कुल चंगा और तंदुरुस्त हो गया। ये हमारे यस्सु अल मसीह का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है और फरीसियों और फ़कीयों और मज़हबी उलमा के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत भी थी। जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बाएं हाथ से खाते हैं, तो उनको अमूमन मुश्किल होती है, तो उनका आसान हल ये है कि बायां हाथ टेबल के नीचे रखें और दाएं हाथ से खाएं। ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ताकि वो दाएं हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। आज भी खुदा उसी तरह से मौजज़ात करता है। आज भी लोग शिफा पाते हैं और लोग गवाहियाँ देते हैं, जैसे कि इंडिया से एक गवाही हमारे पास आई कि एक शख्स जिसका बाजू ख़राब था, उसने खुदा के हजूर दुआ की और उसका बाजू बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमारी मिनिस्ट्री में भी इस तरह की बहुत सी गवाहियाँ सुनने को मिलती हैं। तो ये बात यही है कि खुदा सिर्फ उसी वक्त शिफा नहीं देता था जब यस्सु अल मसीह माजी में इस दुनिया में था, बल्कि वो आज भी लोगों को शिफा देता है, लोगों को भला करता है। और हमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि आज भी अगर हम सच्चे दिल के साथ खुदा से कुछ मांगते हैं तो वो हमारी एहतियाज रफ़ा करता है। और शायद कि उन्होंने सुना हो कि वो ठीक हुए हैं सब्बत के दिन, इसीलिए तो वो उसको पकड़ने के लिए भागे। जी बिल्कुल, वो मजहबी उलमा और वो फ़कीह और फरीसी हमेशा इस तलाश में रहते थे, हमेशा ऐसी वक्त की खोज में रहते थे कि किस तरह से वो यस्सु अल मसीह पर इल्ज़ाम लगा सकें और किस तरह से वो उसे झूठा करार दे सकें और किस तरह से लोगों में उसकी ताकि वो साख को उसके खराब खिलाफ कर उज़र सकें। ढूंढ सकें। जी बिल्कुल ऐसा ही था और लोग जो हैं उसके साथ यही कर रहे उन्हें थे पता जो था हम कि वो ठीक पढ़ते हो हैं। जाएगा। मगर यस्सु अल मसीह हमेशा उनकी नीयतों और उनके इरादों से वाकिफ होता था और वो उसी के मुताबिक उन्हें मैं जवाब यहाँ पर देता। ये बात भी ज़रूर बयान करना चाहूँगी कि ये मौजज़ा उस मौजज़े से थोड़ा-सा मुख्तलिफ है जो हमने पिछली एपिसोड में जिसके बारे में बयान किया था, औरत जो कि कह रही थी खुदा से शिफा के लिए। इसमें ओपनली कुछ नहीं कहा गया, बल्कि फ़कीह और फरीसी जो दिल में सोच रहे थे, खुदावंद यीशु ने ना सिर्फ उसको जवाब दिया, बल्कि उसने उस शख्स को शिफा भी दी। जी हाँ, खुदा कितना अजीम है। जी हाँ बिल्कुल, और हम देखते हैं यस्सु ने वो शख्स जिसका हाथ सूखा हुआ था उसे कहा कि आओ और सामने खड़े हो जाओ, और उसे उन सब के सामने यस्सु ने शिफा दी। और हम ये मरकज़ की इंजील में देखते हैं और वो फ़कीह और फरीसी उसके दुख को नहीं समझ सकते थे जिसका हाथ मासूर था। यस्सु उसके दुख को समझ सकता था और उसने उसे शिफा दी। फ़कीह और फरीसी हमेशा इसी
तलाश में रहते कि किस तरह से वो यस्सु की बातों में यस्सु को फंसाएं और उस पर इल्ज़ाम लगा सकें, मगर यस्सु ने उस हाथ से माजूर शख्स को, जिसका हाथ सूखा हुआ था, उन सब के सामने शिफा दी। और अक्सर हम सोचते हैं कि देखें, यस्सु जो है वो कोई माफुकुल फितरत शख्सियत थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो कामिल इंसान था और उससे भी बहुत सी बातें महसूस होती थीं, उसके भी जज्बात थे और उसने इन्हीं जज्बात के तहत जो है उन फ़कीयों और फरीसियों पर गुस्सा किया, क्योंकि उन्होंने अपने दिलों को सख्त कर रखा था। वो उन बातों पर लोगों से अमल करवाना चाहते थे जिन पे शायद वो खुद भी नहीं करते थे। उन्हें लोगों की भलाई की फिक्र नहीं थी, बल्कि वो दरअसल रसूमात पर चलना चाहते थे और उन्हीं रसूमात को वो मजहबी रंग देकर लोगों से उस पर इतलाक चाहते थे। मगर यस्सु ने कहा कि क्या ये रवा है कि सब्बत के दिन हम बुराई तो करें लेकिन भलाई के काम ना करें? ये कैसे हो सकता है? और यस्सु ने उनकी बातों को सुना और उनको उन्हीं की ज़ुबान में यस्सु ने जवाब भी दिया, जिस बात को, जिस ज़ुबान को वो समझते थे। देखें, आज हम बात करते हैं और पहले भी हमने इसका ज़िक्र किया है कि खुदा कल, आज और अबद तक यकसा है। वो आज भी मौजज़ात करता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और उसे हम सब की फ़िक्र है। वो हमसे मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि हम एक शिफा याफ्ता ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि वो भला खुदा है। शायद अगर वो भी रसूमात को देखता तो उस दिन उसको शिफा ना देता, मगर खुदा जो है वो रसूमात का नहीं, बल्कि सच्चाई का खुदा है। वो मोहब्बत का खुदा है, वो फजल, रहम और मेहरबानी का खुदा है और वो अपने लोगों पर हमेशा मेहरबान रहता है और अपने लोगों पर हमेशा फजल की निगाह करता है, अपने लोगों पर हमेशा अपनी मोहब्बत को निछावर करता रहता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम रसूमात पर ना जाएं, बल्कि जैसे यस्सु अल मसीह ने हमें सिखाया, हम उस पर अमल करें। उसकी बातें यकीनन हमारे लिए जो हैं मशले राह हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में मरकूम है, ज़बूर नवीस कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। फिर ये भी कहा गया है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। तो हमें कलाम मुक़द्दस को सुनने की ज़रूरत है, हमें उस पर गौर करने की ज़रूरत है और हमें जो है उन मौजज़ात को देखने की ज़रूरत है जो खुदावंद यस्सु अल मसीह ने इस दुनिया में मौजूद होते हुए हमारे लिए किए, और वो आज भी उन्हीं मौजज़ात को करता है। आज भी लोग शिफा पाते हैं, आज भी लंगड़े चलते हैं, आज भी अंधे देखते हैं, आज भी वो तमाम मौजज़ात होते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में मरकूम है कि वो कल, आज और अबद तक यकसा है। हमें इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है, हमें खुदा के कलाम पर गौर करने की ज़रूरत है और हमें फ़कीयों और फरीसियों जैसा रवैया नहीं अपनाना जो रसूमात को इंसानी फ़लाह बहबूद पर तरजीह देते थे, बल्कि हमें हकीकत में खुदा के कलाम की तालीमात पर चलने की ज़रूरत है, उन तालीमात पर जो अनजील में मरकूम हैं, जो खुदावंद यस्सु अल मसीह ने दी। और खुदावंद यस्सु अल मसीह ने ना सिर्फ ये बातें कहीं, बल्कि अमली तौर पर भी इनका बेहतरीन नमूना पेश किया। हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद यस्सु अल मसीह की मानद बनते चले जाएं, क्योंकि कलाम कहता है कि रोज़ बरोज़ उसकी मानद बनते चले जाओ। तो अजीज़ो, हमें कलाम की इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है, कलाम का मुताला करने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाम कल, आज और अबद तक हम सब के लिए यकसा है और आज भी वही कुदरत रखता है जो कुदरत वो माजी में रखता था। हमें बस ज़रूरत है कि हम महज रस्मों पर ना जाएं, हम महज छोटी छोटी बातों पर ना जाएं, बल्कि हकीकत में कलाम
پر جو ہے وہ عمل کریں اور کلام کی باتوں کو اپنے ذہن نشین کریں، اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لیں اور آتے جاتے ہمیشہ ہمارا دھیان انہی کلام کی باتوں پر ہو۔ جی تو جیسے ہم نے بات کی کہ خدا کل، آج اور ابد تک یکساں ہے، اور ہم بھی آج اپنی زندگی میں اس کے معجزات کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آج بھی وہ وہی قدرت رکھتا ہے جو وہ ماضی میں رکھتا تھا۔ تو آئیے ہم سب مل کر اپنی زندگیوں میں کوئی معجزہ پانے کے لیے، اس کے عجائب کام پانے کے لیے دعا کریں۔ جی تو اس وقت ہم چاہیں گے کہ آپ دعا میں سروں کو جھکائیں، اس کی حضوری محسوس کریں اور ان الفاظ میں دعا کریں: اے پیارے یسوع، میں تیرے حضور جھکتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں یس اور خدا، میں تجھ سے رحم کر، معافی کا رحم کر طلبگار خدا ہوں۔ یس اے رحم خدا کر، باپ، ہم پر میں رحم چاہتا کر۔ ہوں کہ آج تو ہماری یس، زندگیوں میں کام کرے۔ ہیل ہیل ہماری ہیل اس زندگیوں میں پیارے خداوند، معجزات کی ضرورت ہے۔ رحم تو رحم کر، طاقت رکھتا ہے، فضل تو نازل قدرت فرما، رکھتا ہے۔ رحم کر ہماری پتر، زندگیوں میں کام سب کر، کو بلیس جس کر طرح تو نے اس اس وقت بھی ہاتھ اپنے سے دل معذور پر شخص کو تیرے ہاں میں شفا دی جھکے ہیں، خداوند۔ بلیس آج کر ہمارے سب کو بدنوں کو بلیس کر شفا میرے کی خداوند، ضرورت ہے۔ چھو تو اپنا ہمیں کچا ہوا شفا ہاتھ دے، بڑھا روحانی اور طور سب پر پر ہمیں اپنا مضبوط رحم کر۔ بنا، ہمیں یہ یسوع توفیق دے یسوع کہ تو ہم عظیم اپنی خدا ہے، بدکاریوں کو تو چھوڑ رحم کر کر، اپنے رحم کر گناہوں کا میرے اقرار خداوند، کریں اور رحم تیری اور طرف رجوع فضل لائیں۔ نازل فرما، ہم یہ دعا آمین۔ مانگتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ جی تو اب وقت ہے کہ اپنی زندگیوں میں مسیح کو آنے کی دعوت دیں، اسے کہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں آئے، آپ کی زندگی میں اپنے معجزات کرے، آپ کی زندگی میں عجائبات ظاہر کرے، آپ کی زندگی میں کلام کے گہرے مکاشفات کھولے، تاکہ آپ اس کی قربت میں زندگی گزارنے والے ہوں اور اس کی برکات حاصل کرنے والے ہوں، جو برکات وہ ہمیں دینے کا یہ وعدہ کرتا مقدس ہے۔ میں ہم اس کے حوالے سے دیکھیں گے دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ ہاللیلویا! اگر آپ خداوند یسوع کو اپنی زندگی میں اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو پرانی چیزیں جاتی رہیں گی اور آپ بالکل نئے ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا! جی تو عزیزو، آج کے معجزے سے ہم نے سیکھا یہ ہے، جو آج ہم نے بیان کیا، کہ وہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بہتر زندگی گزار سکیں، کیونکہ کلام میں مرقوم ہے کہ وہ اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ وہ ہمیں کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے، بھرپور زندگی دینا چاہتا ہے، روح سے معمور زندگی دینا چاہتا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس سے یہ تمام نعمتیں حاصل کرنے والے ہوں۔ تیرا شکر ہو خدایا، ہاللیلویا! تیرا شکر ہو۔ جی بالکل، آج آپ نے یہ تمام باتیں سنی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھیں۔ دیکھیں، کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور کلام مقدس میں اس طرح بھی مرقوم ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ تو ہمیں خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں اہمیت دینے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلام کی باتوں کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور اپنی زندگیاں اس طرح سے گزاریں جس طرح سے وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں بسر کریں۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ایک مؤثر تبدیلی لائیں،
کیونکہ اسی مؤثر تبدیلی کی وجہ سے ہم مزید خدا کی قربت میں آ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ ہمارے دکھوں کو اپنے اوپر اٹھا لے، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ خدا کا بے عیب اور پاک برا تھا، مگر اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان دی۔ اس نے صلیب کا دکھ برداشت کیا، اس نے ہماری خطاؤں کی خاطر کوڑے کھائے، اس نے مار کھائی، اس نے ہماری شفا کے لیے جو ہے یہ مار کھائی۔ اور آج تیرا ضرورت شکر ہو۔ اس بات کی ہے آمین۔ کہ ہم اس کے قریب آئیں، اس کی باتوں پر عمل کریں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ اور مالک اور خداوند قبول کریں۔ تب ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، تب ہماری زندگیاں جو ہیں وہ کثرت سے بڑھیں گی اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا سبب بنے گی۔